So so whether they were the social democratic, they were the socialist revolutionaries, they were the peasants, workers, everyone, they all were against they were standing against the Tsar. They wanted to end with the autocratic rule of Tsar. So we'll continue from here that what were the reasons, what were the condition of Russia in 1905, or we can say that what were the reasons behind the 1905 revolution that happened in Russia. Khushi is in 9C. Yes, ma'am. She's coming without the fiber. Now, the reasons, anyone who can just start up with, this next time likha ho ya yaad ho. We discussed that there was a very bad year for a particular type of people. हमने बोला था पहले ही, एक तो लोगों की तो सबकी खराब कंडीशन थी, बट देयर वाज अ कैटेगरी ऑफ पीपल जिनके लिए इट वाज कंसिडर्ड टू बी वेरी बैड ईयर. 1905 was a bad year for workers. याद नहीं रखती है 9COP दोनों. So it was a bad year for the workers. One thing, population was already increasing in Russia, already at high pace. Then, because the population was high, though the industrial development was going on, but it was there in the pockets, in only the smaller regions. A few regions were there where the industries were developing. So unemployment still existed. Please do write side by side. Many times I have repeated, history chapters are quite big chapters, and the language they use over there is not so self-explanatory. So whatsoever we are writing here, it's always good to take the notes for it. So unemployment was also increasing. It was at an increase. Prices of the essential items, जो जरूरत का सामान था, bread, butter, जो वहाँ पे जो भी daily basis पे खाते थे लोग, prices for those essential commodities were increasing on large scale. It was inflating, so prices were also increasing. Then we discussed that real wages were decreasing. Real wages decreasing, and that day also I have given the example. Real wage means if right now with rupees 100 I am able to get my food for rupees 50. 50 rupees जो मेरा बचता है, that I will be using it for some other expenses, as well as I may have certain surplus amount which I may keep it as a saving. Whereas if with this particular 100 rupees, if the prices of the things increases and instead of this 50 rupees, I may now start getting my food in 70 rupees. So what will happen to my this 50 rupees expenses? अगर मेरे ये 50 में से 40 का मैं expense कर रही थी and 10 I was saving. यहाँ पे तो मेरे पास बचे ही 30, तो सेविंग तो दूर की बात है, माई रेस्ट ऑफ द एक्सपेंसिव विल ओनली बी ऑफ 30 रुपीज एंड यहाँ 10 जो मेरा लैक कर रहा है, दिस आई मे नीड टू टेक द लोन नाउ ऑफ माई एक्सपेंसेस. इसको हम बोलते हैं रियल वेजेस. वेजेस के साथ जब आप महंगाई को देखते हो, देन यू कैन टेक आउट द रियल वेज कि आपकी वेज की वैल्यू कितनी है, आपकी सैलरी की वैल्यू कितनी निकल रही है. So these were the real wages. Is it clear? Meaning of real wages is clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So here these real wages, they have decreased approximately 20% for everyone. And because of these all exploitation and a lot of issues which were there in the society at that time, there were several associations जो वर्कर्स एसोसिएशंस थी, क्योंकि वर्कर्स बहुत ज्यादा हिट हुए थे इस टाइम पे. सो ये जो वर्कर्स एसोसिएशन थी, इन एसोसिएशंस के जो मेंबर्स थे,
these the number of members they were also increasing, क्योंकि लोग परेशान हो रहे थे, परेशान होके वो किसी ना किसी एसोसिएशन से जुड़ जाते थे so that उनकी बात भी सुनी जाए या उनके लिए भी काम किया जाए. That was the condition of this 1905, which led to the revolution at that time. And there was one day came to be termed as Bloody Sunday. And on this particular day, there were around 1,10,000 people, workers basically, who started with this revolution. इस revolution को उन्होंने start किया because हुआ क्या था यहाँ पे, there were 4 members. ये जो workers association की अभी हमने बात की, जो members बढ़ रहे थे, there were 4 members of these workers association जिनको उनके workplace से निकाल दिया गया था. उनके वहां पे मतलब they were hit by the employers, उनका exploitation हुआ. So due to that, अभी हमने ये पहले भी पढ़ा था कि रशिया में ये चीज बहुत कॉमन थी that if anything happens to one particular worker, तो सारी एसोसिएशन मिलके, सारे लोग मिलके उसके अगेंस्ट लड़ते थे. If something happens wrong with the peasant, तो सारे peasants मिलके लड़ते थे. That kind of socialist society was there. So because something wrong happened to these 4 workers, so all the members associated with that particular association, they revolted. They came up on the streets, and this particular revolt was led by, जो यहाँ पे lead कर रहा था, was Father Gapon. Again, I'll insist to write the important things. And what they wanted to do, ये चाहते क्या थे, ये लड़ना नहीं चाहते थे basically. मतलब they were just protesting, and they were moving, they were marching towards the Winter Palace. Winter Palace में क्या था, कहाँ जा रहे थे, 1 लाख लोग मिलके कहाँ जा रहे थे, they were moving towards Winter Palace with the leader Father Gapon. क्या करने जा रहे थे, विंटर पैलेस में कौन रहता था? Ma'am, Tsar. Tsar was living there. So they just wanted to have a meeting with Tsar. एक मीटिंग करना चाहते थे, सिर्फ उनसे बातचीत करना चाहते थे, इसके लिए वहां जा रहे थे. They were not going to fight for this particular thing. They were just going there. They wanted to talk to Tsar. They wanted to tell him कि ये issues हैं, why the workers are being exploited by the employers like this, why this kind of situation is there, why it's such a bad year for the workers and Tsar is not doing anything, or the population is rising, what are you doing, what kind of employment you should be creating for the unemployed people, why so much basic necessity items prices are hiking. ये सब बात करना जाना चाहते थे. लेकिन हुआ क्या, जब ये इन सब लोगों की खबर मिली ज़ार को कि they all are coming, these many people, this much number of people, they are coming to the palace, वो डर गया. उसको ऐसा लगा ये तो अब आके यहाँ पे हमारे साथ मार पिटाई शुरू करेंगे. लैंडलॉर्ड की सिचुएशन तो पता ही थी सबको कि वो क्या हालत कर देते थे. So he got afraid. ज़ार जो था वो डर गया. उसने अपने डर की वजह से फर्स्ट इनके ऊपर अटैक कर दिया. ठीक है. So ये जो ज़ार था, he because of his he was afraid of these many people, he asked to attack. उसको अपने soldiers को इनके ऊपर अटैक करने के लिए बोला. पुलिस को, इसमें हम लिखते हैं 2 टर्म्स, इसको प्लीज आप लिख लोगे और याद रखोगे. पुलिस एंड Cossacks. Cossacks were police with horse. तो लिख लो और वर्णमार्क के लिए मार्क कर देंगे. Police with horse and otherwise also normal police. He sent all these 2 types of police to kill the people, to attack the people, so that they should be stopped before they reach to the palace. और ये उल्टा वो बात करने जा रहे थे और ये एक उल्टा ही अटैक हो गया, where 100 of workers were killed. जिसका रिजल्ट आया इस अटैक का, बहुत सारे लोग मर गए. ठीक है. 300 अराउंड वर्कर्स जो थे they were wounded, उनको बहुत चोटें लगी थी. So this was the impact of the attack done by the police.
with the instruction of the czar. So that is what this was termed as bloody Sunday. कि करने तो वो बात चाह रहे थे, they were just they wanted to delegate with him, they wanted to talk to the czar, but because of his मतलब एक होता है ना, आप इनिशियली अज्यूम कर लेते हो कुछ चीज को, तो अज्यूम करके वो डर गया और उसने उसको ऑपोजिट अपनी तरफ से अटैक करवा दिया. ठीक है, दिस थिंग हैपेंड. और ये जो वर्कर्स हैं, इनकी डिमांड क्या थी? शुड आई क्लियर दिस ऑफ? Yes, ma'am. Yes, जो ma'am. वर्कर्स हैं, इन लोगों की डिमांड क्या थी? अब डिमांड ये चाहते थे कि देयर शुड बी अ पार्लियामेंट विद कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे, पार्लियामेंट डिमांड कर रहे थे, and they wanted this formation. Now they don't want to accept any form of autocratic rule जहां पे एक ही रूलर रूल कर रहा है. वो उस पर्टिकुलर रूल को चाहते ही नहीं थे. उन्होंने बोला बार बार वो यही कह रहे थे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनली डिसीजंस लिए जाए हमारी कंट्री में, पार्लियामेंट फॉर्म की जाए. ठीक है, अब ये जो रिवॉल्ट ये इतना बढ़ता चला गया, ये इतना एंगर क्रिएट हो गया लोगों में, जार ने ऑपोजिट अटैक कर दिया, लोग बहुत गुस्से में आ गए. सो एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी दे स्टार्टेड डूइंग स्ट्राइक्स. उन्होंने स्ट्राइक्स करी, जो भी प्रोटेस्ट के मेथड होते हैं. अभी देखा आपने कल परसों के न्यूज में कैसे लोग अपोज करते हैं चीजों को. सो यूनियन स्ट्राइक्स शुरू हो गई, एक कल्चर शुरू हो गया वहां पे कि बहुत ज्यादा एक्सेस नंबर ऑफ स्ट्राइक्स वर देयर, unions were formed, and they all what they wanted parliament and constitution. ठीक है, अब ये इतनी सारी जब स्ट्राइक्स शुरू हो गई, लोगों ने इतना जार के अगेंस्ट बोलना शुरू कर दिया, जार के अगेंस्ट अपने आप को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया, तो जार घबरा गया. फिर से जार को लगा कि अब मुश्किल है इन लोगों को संभालना. Soon he accepted the parliamentary form of government है. उसने कहा ठीक है, मैं आप लोगों की बात को समझ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, और मैं ये पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हम फॉर्म करेंगे जिसमें रिप्रेजेंटेटिव्स विल बी देयर, कॉन्स्टिट्यूशन विल बी देयर, एंड दिस वाज टर्म्ड एज डूमा. वेरी इंपॉर्टेंट दिस टर्म, you should know. It was the creation of it was the elected consultative parliament. When you say elected, that means किया जाएगा उनको. Consultative means जिससे कंसल्ट करके ही किंग डिसीजन लेगा. ऐसी पार्लियामेंट को बनाया जाए जिसको उन्होंने नाम दिया ड्यूमा. First, this much is clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. लोगों से डरकर किंग था, जार था, उसने ड्यूमा एक्सेप्ट कर ली. एंड द फर्स्ट, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट ड्यूमा है, हम ड्यूमा की बात करते हैं कि क्या प्रोसीजर चला ड्यूमा में. अब किंग था, उस टाइम पे तो डर गया, वो डर के उसने एक्सेप्ट कर लिया कि फाइन वी विल बी हैविंग द पार्लियामेंट और हम मिलकर डिसीजन लिया करेंगे. लेकिन इतने शरीफ तो होते नहीं है जितने भी मोनार्कियल और ऑटोक्रेटिक लीडर्स होते हैं. फाइनली दे वांट पावर. सो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, डर तो वो गया था, उसने ड्यूमा एक्सेप्ट कर लिया था, बना दिया था. तो पहला स्टेप तो इसमें लिया. सबसे पहले अगर हम बोले तो इट वाज अ क्रिएशन, द फर्स्ट थिंग डन वाज द क्रिएशन ऑफ ड्यूमा. फर्स्ट ड्यूमा उसको हम बोल सकते हैं, द फर्स्ट वन, क्योंकि 2-3 बार बनी थी ये. ठीक है, ये पहला तो उसने सबसे पहले एक ड्यूमा बना दी. दूसरा 1905 के बाद, आफ्टर 1905 मोस्ट कमिटीज एंड यूनियंस, जितनी भी यूनियंस और कमिटीज बनी हुई थी, एसोसिएशंस और एनीथिंग, उनको इलीगल डिक्लेयर कर दिया. अब तो आपका लीगल सब हमने बनाई दिया, ड्यूमा बना दिया, यू हैव योर रिप्रेजेंटेटिव्स. सो इन सबको इलीगल किया सो दैट फर्दर लोग एक दूसरे के साथ एसोसिएट ना हो पाए. दैट वाज द मेन मैम, ये जार के थे ना? हाँ मैम, ये काम जार ने किए थे ना? हाँ, दिस इज ऑल बीइंग डन बाय जार.
First, he accepted and made the Duma. Second thing that made all these mostly जितने उसके बस में थी उससे हुआ, unions committees को illegal declare किया. Third thing he has done कि अब within 75 days around तो ये ड्यूमा के बनने के within 75 days उसने ज़ार ने डिसमिस कर दिया फर्स्ट ड्यूमा. ठीक है, ही डिसमिस्ड. उसने बोला कि ये ठीक से काम नहीं हो रहा, ये मेंबर्स ठीक नहीं है, क्योंकि लीडर तो अभी भी वही था ना. सो ही डिसमिस्ड ड्यूमा, द फर्स्ट ड्यूमा व्हिच ही मेड, एंड री इलेक्टेड, और खुद ही से दोबारा दूसरे मेंबर्स को चूज करके री इलेक्टेड सेकेंड ड्यूमा. ठीक है, अब ये कोई लोग तो बहुत ज्यादा इसमें अभी इलेक्शंस में पार्ट ले नहीं पाते, मेन हेड वाज द किंग ओनली. सो यहाँ पे इसको लगा कि जब ये वाले मेंबर्स मेरा सपोर्ट नहीं दे रहे, तो उसने उनको डिसमिस करके वो पूरा पार्लियामेंट डिसमिस कर दिया और नया एक और ड्यूमा डेवलप किया. देन अगेन उसके बाद उसने वो सेकेंड ड्यूमा को डिसॉल्व कर दिया, थर्ड ड्यूमा उसने डेवलप किया. रीजन क्या था? वो नहीं चाहता था, ही नेवर वांटेड अथॉरिटी को कोई क्वेश्चन करे, और ये ड्यूमा अगर पार्लियामेंट है तो क्वेश्चन तो करेगी. सो वांटेड कि उसकी अथॉरिटी को कोई क्वेश्चन करे. सो यहाँ पे उसने सेकंड ड्यूमा को भी डिसॉल्व कर दिया, एंड ही मेड द क्रिएटेड थर्ड ड्यूमा. और इस थर्ड ड्यूमा में बहुत क्लेवरली, वेरी क्लेवरली व्हाट ही डिड, यहाँ पे जितने भी इसके जितने भी लोग ये थे ना, कंजर्वेटिव्स रिमेंबर, कंजर्वेटिव्स जो पुरानी सोच वाले थे, जो मोनार्की सिस्टम, ऑटोक्रेटिक रूल को सपोर्ट करते थे, इसने थर्ड ड्यूमा बना के ज़ार ने वहां पे मैक्सिमम जो उसने जितने भी मेंबर्स लेने थे ड्यूमा में, दैट ऑल ही मेड एज अ कंजर्वेटिव पीपल, ताकि वो ज़ार की सोच के साथ मैच करेंगे और उसको अपोज नहीं करेंगे, उसके अथॉरिटी को अपोज नहीं करेंगे. सो he dismissed Duma after Duma and recreated will for his own benefits, own needs. मैम ऐसा 3 बार ही किया कि उससे ज्यादा भी किया? नहीं, थर्ड टाइम. उसके बाद तो फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई, फिर वो उसमें बिजी हो गए. फिर रशियन रेवोल्यूशन दूसरी स्टार्ट हो गई, आपकी फेब्रुअरी रेवोल्यूशन. तो धीरे धीरे फिर रशिया में फिर लेनिन वापस आ गया. वो आगे अब वो तो आगे अभी बढ़ेंगे. बट इनिशियल स्टेजेस पे जो ड्यूमा बनी थी बिफोर टिल द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यही चलता रहा. पहले एक बनाई, डिसॉल्व कर दी, दूसरी बनाई, उसके मेंबर्स ने अपोज किया, फिर डिसॉल्व कर दी, थर्ड देन ही मेड कि अब अपने ही लोगों को बना देते हैं जो मेरे विचार वाले लोग हैं, मेरे थॉट प्रोसेस वाले लोग हैं. सो दैट ओनली ही डिड, एंड ही पुट कंजर्वेटिव्स इन द ड्यूमा. तो ड्यूमा का जो पार्लियामेंट बनाने का, कॉन्स्टिट्यूशनल में आके लाने का, या जो ड्यूमा को बनाने का एम था, दैट वाज lost with the creation of the third Duma. Am I right? समझ आया है? Yes, ma'am. Should I clear this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. One part. ओहो, इतना लेट बोला. No issues. I will put the recording also if anyone has some issue. Now, the First World War and Russian Revolution. World War हमने पहले भी डिस्कस की थी. इसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किसमें डिस्कस की थी हमने? भूल गए? मैम नाजिज्म. हाँ, नाजिज्म वी हैव डिस्कस्ड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. उससे पहले आपने 8th में इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर डिस्कस किया था इंडिया के ऊपर भी, क्योंकि ब्रिटिश भी था ना, मैं इंडिया के ऊपर रूल कर रहे थे. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आप देखोगे बहुत जगह आप डिस्कस करते हो, क्योंकि हर कंट्री के ऊपर अलग कुछ कॉमन इम्पैक्ट्स थे, कुछ डिफरेंट इम्पैक्ट हुए. नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन रेवोल्यूशन. इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में
एक तरफ अगर जर्मनी था, और जर्मनी के साथ आप देख ही चुके हो ऑस्ट्रिया का अलायंस था बहुत अच्छा, दोनों मिलकर रहते थे हमेशा, और रशिया था दूसरी तरफ। तो ये दोनों एक बिल्कुल पसंद नहीं करते थे एक दूसरे को। इनिशियली जब ये वॉर स्टार्ट हुई, इन द इनिशियल स्टेजेस when the war started, people they supported the czar. जो लोग थे ये जार को सपोर्ट करते थे क्योंकि जार ने वॉर में पार्ट लिया, सो दे सपोर्टेड द जार ऑफ रशिया कि वो जर्मनी के अगेंस्ट लड़ रहा है। जार ने क्या किया, जो ड्यूमा बनी हुई थी उसने जो भी सजेशंस दिए फॉर रिलेटेड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, हाउ टू पार्टिसिपेट ओवर देयर, या जो भी बहुत सारे डिसीजंस होते हैं जो आपको वॉर में लेने होते हैं, सो जार ने ड्यूमा के किसी भी सजेशन को एक्सेप्ट नहीं किया। वैसे तो कंजर्वेटिव्स ही रखे हुए थे, लेकिन उसमें भी देयर आर पीपल दोज हु हैव द वैरायटी ऑफ थॉट प्रोसेस, अपने अपने हिसाब से वो बात करते हैं। तो ही डिड नॉट लिसन एनी ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द ड्यूमा and he took the charge of the first world war again as an autocratic ruler, जैसे अपने decisions लेता है, he started taking. So he started taking the decisions on their own. अब जो लोग थे यहाँ पे already बहुत ज्यादा एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स थे लोगों के अंदर, ठीक है। इसके साथ साथ मतलब इतने ज्यादा एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स थे कि यहाँ पे जो मेजर सिटी थी सेंट पीटर्सबर्ग, ये जर्मन नेम था, जर्मन नेम। तो इतना इनको गुस्सा था लोगों को, दे रीनेम्ड इट एज पेट्रोगार्ड। नाम दूसरा बदल दिया क्योंकि हमें जर्मन नाम नहीं चाहिए होता है ना, हमें गुस्सा आता है जब एक दूसरे के ऊपर, तो हम उसका सामान यूज नहीं करेंगे। दूसरा, लोगों को क्या गुस्सा था, लोग नोबिलिटी के अगेंस्ट क्यों होते चाह रहे थे, बिकॉज द जरीना विल बी द क्वीन, जरीना अलेक्जेंड्रा, शी वॉज ऑल्सो द जर्मन ओरिजिन, इसका भी जर्मन ओरिजिन था, शादी से पहले जर्मनी की थी ये। So she was also of the German origin. तो लोग बिल्कुल किंग एक तो ड्यूमा की बात नहीं मान रहा था, किंग अपने हिसाब से काम कर रहा था। सो इनिशियली तो वो सपोर्ट किया, फिर लोगों को किंग के ऊपर भी गुस्सा था, जर्मनी पे भी गुस्सा था, जरीना पे भी गुस्सा था, और जरीना का बेस्ट फ्रेंड था एक रास्पुटिन। तो ये जो रास्पुटिन था, ही वाज अ मैन, ये भी बहुत अनपॉपुलर ऑटोक्रेटिक उसमें आता था, जो है ना बहुत सारे, अगर ऑटोक्रेटिक रूलर्स की हम लिस्ट बनाए तो ये भी उसकी लिस्ट में आता था। ही वाज आल्सो अ वेरी बेस्ट फ्रेंड ऑफ जरीना। सो जरीना के अगेंस्ट थे लोग, पूरी नोबिलिटी के अगेंस्ट थे पूरी तरह से। जार एंड जरीना और उनकी नोबल फैमिली से लोग बिल्कुल पूरी तरह से इस टाइम पे ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, you need to remember that they were against this royal family. इस royal family के totally against हो चुकी थी रशियन पॉपुलेशन। They were not at all in support of them. ठीक है। अब रशिया का अगर हम वॉर में बोलते हैं तो रशिया वॉज कंप्लीटली इनटू द वॉर, पूरी तरह से वो वॉर में पार्टिसिपेट कर रहा था। इसमें हम दो चीजें बोलते हैं, वन ईस्ट फ्रंट एंड वेस्ट फ्रंट, ये आपको याद रखना है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी जरूरी है। दोनों तरफ से रशिया वॉर में घुसा हुआ था, अपने वेस्ट से भी और ईस्ट से भी। फर्क क्या था, वेस्ट जो ईस्ट फ्रंट था, ईस्ट फ्रंट में इट वाज मेनली जो आर्मी थी, जो पैदल जाते थे लड़ने, दे वर इन्वॉल्व, एंड बहुत सारे लोग यहाँ, मतलब जो भी वो आर्मी लड़ने चाहती थी बैटल में, बहुत कैजुअलिटी हुई, बहुत लोग मरे, बहुत सारे सोल्जर्स मरे। दे गो ऑन फुट इन दिस ईस्टर्न फ्रंट। और ये जो वेस्टर्न फ्रंट था, यहाँ पे मेनली दे यूज्ड टू गो थ्रू द ट्रेंचेस। ट्रेंचेस क्या थे, इफ यू रिमेम्बर? Mom, dirty small areas, army life. अंडरग्राउंड टनल्स टाइप जो थे, वहां पे ही वो लोग रहते थे, फिर ट्रेंचेस में से निकल के लड़ते थे, फिर ट्रेंचेस में वापस आ जाते थे। वो वाला ही कंसेप्ट था। जो रशिया का जो वेस्ट फ्रंट था, जो ईस्टर्न फ्रांस की तरफ निकलता था, वहां पे ट्रेंचेस के थ्रू लड़ाई के लिए भेजते थे सोल्जर्स को, और ईस्ट फ्रंट में खुला एकदम जो पैदल सोल्जर्स लड़ने चले जाते हैं, दे वर गोइंग इन दैट वे, एंड huge number of
जो कैजुअलिटीज, पीपल डाइड देयर, इंजरीज तो हम बोलेंगे क्या है इसमें, मतलब दे डाइड लाइक एनीथिंग। और जो रशिया था बुरी तरह से शॉकिंग डिफीट हो रही थी रशिया की, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्योंकि पहले ही लोग गुस्सा थे, 1905 का रेवोल्यूशन हो चुका था, ऑलरेडी पीपल वर अगेंस्ट द जार, ड्यूमा डिसॉल्व कर चुका था जार काफी बार, ड्यूमा के जो रखे भी हुए थे, एक तो वो अपने ही लोग रखे हुए थे अपने थॉट प्रोसेस वाले, सेकेंडली ही वाज नॉट लिसनिंग टू देम आल्सो, जरीना के वैसे अगेंस्ट थे ड्यू टू द जर्मन ओरिजिन people. So a complete drift among the nobility and the Norman common people was there. इतने सारे सोल्जर्स मरते जा रहे थे, खाना खाने के लिए नहीं था। कभी भी वॉर होती है, एनी कंट्री हु टेक पार्ट इन द वॉर, अर्लियर आल्सो वी डिस्कस्ड, बेसिक जो उसकी प्रॉब्लम्स आती हैं, लोग मरते हैं, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन लॉस होता है। we'll discuss that how many people died by 1917 in the next part। जो भी हम रशिया की कंडीशन क्या थी या इम्पैक्ट क्या था रशिया के ऊपर by the time of First World War, you will see 7 million people were killed and injured by 1917 in Russia. Soldiers do not want to go to the war. प्राइसेस डेफिनेटली हाइक हो जाएंगे, फूड शॉर्टेज, सिटीज में खाना पहुंचाने के बजाय आर्मी को खाना पहुंचाया जा रहा था क्योंकि इस टाइम पे दे वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल फॉर द जार। लेकिन रिजल्ट क्या निकल रहा था, बुरी तरह से हारते जा रहे थे, बहुत सारे लोग मरते जा रहे थे। देयर वर lot of issues which were happening, which were creating a lot of problem in the social, political as well as the economic life of the people, which will continue in the next class about that. So we'll discuss the Russian condition in the First World War 1914 से 17 के बीच में रशिया के में कि क्या कंडीशन हो गई थी। 5-7 points are there and then we'll discuss what was the February Revolution। उसमें अब नेक्स्ट लोगों ने नेक्स्ट क्या रेवोल्यूशन की और कैसे जार ही एब्डिकेटेड, वो भाग गया अपनी जगह से, छोड़ना पड़ा उसको। दैट पार्ट विल डिस्कस, ठीक है। Okay, ma'am. ओके।